So, hi everyone, welcome back to our podcast. This is episode 3 of us being consistent. Yeah. Also, we'll give you some time to subscribe. We need Yeah. subscribers. Let's Please. give them 5 seconds. Okay. Did you subscribe? Did you subscribe? Did they subscribe? I think we can trust our fam. We trust you guys. Well done. And please पूरा देखना यार, काफी interesting चीज है आगे. That you'll know. But subscribe. It's just a button like Yeah, just subscribe. That क्या बोलते हैं इसको घंटा Bell icon. Bell icon. bell icon is to get notified, I think. Oh, You okay. just subscribe. But you can do both, Subscribe. We don't mind because Subscribe. we will. ये कोई तरीका है भीख मांगने का. So, hi guys, I'm Yudasha Ratra. And I'm Sakshi Jain. And this is our podcast. Cause girl, same. भाई ये राइम नहीं हो गया. Yeah, so what is the topic for today? Today we are going to talk about things that you can only experience in Mumbai. Yeah, like it's been a year now. It's coming not from a very experienced section क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा ही time हुआ है, so we are like year. neither here nor there kind of we were just sharing our experiences. जो हमें लगा है that काफी cultural shocks भी है, and then some things are good, some things are not so good. So yeah, I mean, but it let's happens start. only in Bombay for Auntie sure. Mumbai. Let's go. Let's go. Yeah, so start. Yeah. Tell So us I one think thing. first cultural shock है कि दिल्ली में ना अगर तुम किसी से पहली बार मिल रहे हो तो तुम आप करके ही बात करोगे. Like there is a level to friendships to reach to. Yeah, Like first time when you're meeting someone, you'll greet with आप, अगर आप उसको नहीं जानते चाहे वो सेम एज में क्यों ना हो. एंड यहाँ पे फर्स्ट गो में ही दे गो विथ तू. I know. तो वो तुम्हें बहुत ऐसे हो जाता है कि ए इतना क्या फ्रैंक हो रहा है, तू लेवल तक कैसे पहुंचा ये एकदम से. सो दिस इज अ वेरी कल्चरल शॉक. बट आई थिंक क्या होता है हमारे यहाँ पे तू इज कंसिडर्ड एज लाइक अ, अगर आप बड़ों से तू करके बात कर रहे हो इट्स लाइक अ बदतमीजी वाला और लाइक वेरी फ्रैंक. बट हियर इट्स नॉट स्टेटेड एज दैट, सो उनको डिफरेंस नहीं लगता. आई थिंक हाँ, मतलब यहाँ पे नॉर्मलाइज है और काफी वही है. लाइक इट दे डोंट सी इट एज अ डिसरिस्पेक्ट. मतलब even the other day one of our friends, he was calling his dad and he was like, तूने ये नहीं किया. And I was like, bro, what the hell, you can't talk to your dad like that. I mean, मेरे माँ बाप तो एकदम what the hell ये कैसे कर दिया. मतलब काफी होता है. पर वो उनके डिक्शनरी में इट्स हाँ, नॉट exactly, that's disrespecting. what I'm saying, no? So yeah, I mean, that is one thing definitely. Major cultural shock. Major. Other thing that I find Mumbai में काफी अच्छा है, that is Kali Pili. It's soul of Mumbai. Especially Sobo side ही चलता है. Like people who don't know, Sobo side सिर्फ Kali Pili चलता है. No autos, nothing, just Kali Pili. Autos want Yeah. cutting it for Sobo, people. you know. This So is you can too- either get a Kali Pili or you can book an Uber. yeah, मतलब that's it. ऑटोस का कोई सीन नहीं है वहाँ पे. Yeah. So I feel वहाँ पे जो काली पीली ड्राइवर्स होते हैं, they are just too sweet to be true. I'm not even kidding. Like you know, उन्होंने खुद को, क्योंकि इतने सारे travelers आते हैं उधर, टूरिस्ट आते हैं, तो उन्होंने खुद को वो टूरिस्ट गाइड बना रखा है. And they have some powers to know कि कौन टूरिस्ट है या know. कौन रह रहा है. वो अपने ये यहाँ पे सबसे- हम लोग नवी मुंबई रहते हैं तो हम कभी कभी सोबो साइड जाते हैं बट उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ इतना भी नहीं पता है इन्हें. तो खुद ही मेरा हाथ लग जाएगा ये आइसक्रीम वाला है, ये यहाँ पे ये होता है अपने आप से. I know. मतलब चलते चलते, अरे आपको पता है यहाँ पे रुस्तम की आइसक्रीम बहुत फेमस है, आप जहाँ पे जा सकते हो. यहाँ पे मरीन्स में ना ये वाला साइड ज्यादा अच्छा है. मतलब ये सबसे बड़ी वो है, क्या बोलते हैं, मिस्ट्री, कि उनको पता कैसे चलता है कि ये कौन सा है कौन सा नहीं है. मराठी लिंगो, आप कहीं किसी भी रिलीजन के हो Maybe. आपको मुंबई में रह के मराठी आएगा. बट यहाँ पे इतना कॉस्मोपॉलिटन है तो मतलब कैसे But I नहीं think समझेगा. many people pointed out to me also, हम लोगों की हिंदी बहुत डिफरेंट होती है, थोड़ी true, क्लियर true. होती है और हम हम्म. बहुत इवन हंजी- एक्सेंट इज आल्सो डिफरेंट. हाँ, तो वो उनको कॉल पे भी समझ जाता है. अब जैसे ये वाला मेरे को रह के आ गया, मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर मैंने इनसे नॉर्मल हिंदी में बात कर ली तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा, मुझे चेंज करनी पड़ेगी. I तो know, जैसे right. बोलती भैया वो कहाँ पड़ेगा,
तो जैसे उनको समझ नहीं आ रहा, अरे वो बताओ ना भैया किधर पड़ता है वो, ऐसे जैसे उसी से उनको समझेगा और किसी से नहीं समझेगा। ट्रू ट्रू। इवन तो समझेगा, आई नेवर यूज्ड टू से समझेगा। समझेगा, हाँ भाई। आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड, तो भाई उधर मतलब इवन आई स्टार्टेड सेइंग लाइक, अब मेरे को समझा ना। मैंने कहा भाई नो, दिस इज नॉट माय लैंग्वेज। मेरे को समझा, तेरे को समझा ना, समझा ना अभी, मतलब दिस इज। सो द अदर डे आई वाज गोइंग दिस साइड, मरीन्स के साइड, ठीक है। तो मैंने उबर किया, नहीं उबर तो नहीं, काली पीली किया था। तो आई डिडंट हैव कैश एट दैट टाइम, तो मैंने उनको पूछा कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा क्या। तो भाई उन्होंने सामने से मेरे को ऑफर किया कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो फिर आप मुझे और एक्स्ट्रा दे दो, मैं आपको कैश दे दूंगा। मतलब भाई, I and was he was also like, there by the way. oh, हम साथ ही थे, this like these bitches carrying Paytm, चलेगा नहीं इनका दिन में, तू देना है तो दे, मैं तेरे को और कैश दे दूँ, भाई ऑफरिंग। और हमें सामने से हेल्प मिली तो हम डर गए, नहीं 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 कि कॉमन नहीं है ना थोड़ा सा। नहीं, हमें नहीं चाहिए, नहीं हमें नहीं चाहिए। बट आई थिंक वो काफी स्वीटली बोल रहे थे, उन लोगों हाँ, का बट वैसे कुछ हमें इंटेंशन आदत नहीं थी है ना, तो एकदम से जब उन्होंने था। You बोला, remember that cab experience we can never forget? शर्मा जी शर्मा जी cabs. So one time we were taking a Yeah, cab and I was hilarious. telling her some experience random कि पता है फ्लाइट में ऐसा हुआ वैसा हुआ. He started like talking to us and from nowhere उनके अंदर एक बहुत भरा हुआ आर्टिस्ट बैठा था. He Yeah, started mimicking our prime minister. Then he yeah. started doing some Chanting Gayatri Mantra also. हाँ, then he Yeah. started doing some drunk guy का acting अपने आप से. वो सीन बता रहे थे, सीन Yeah. नरेट करके उन्होंने कैरेक्टर पकड़ा, फिर वो कैरेक्टर पकड़ के उन्होंने Acting पूरा full. एक्टिंग करा और हम बस बैठ के हंस रहे हैं. And he was going full Yeah. on. I was like, आप आर्टिस्ट बनने तो नहीं आए थे? He's like, मैंने फिर वो इंग्लिश में भी बात करके दिखाया. Yeah. पूरा उन्होंने अपना India's Got I think Talent we कर दिया. also took a video of him. हाँ, मेरे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वो इतने इंटरेस्ट से बता रहे थे, हाँ सही बात है, सही बात है, नहीं बननी चाहिए थी उसकी सरकार. But काफी अच्छा था, like one of experiences. Yeah, so next. Kali Pili is one thing. Other thing is Marine Drive. I love going to Marine Drives. I love sitting उधर जो उनका कॉमन बालकनी है. So Mumbai has a common balcony जहाँ सब जाके सांस लेते हैं और समुद्र को देखते हैं. So I love going there. Sunset के टाइम पे बहुत अच्छा वाइब होता है. And I don't think it's overrated. I don't think it's overrated because जितना वो सुंदर है, you don't see people आगे. You know, आजू बाजू तुम्हारे कितने भी लोग होंगे, when you see Yeah. in front of you, you just see the sea, you just see the sun Wow. setting, you see the sky. Too much of sea, guys. और कुछ hindrance नहीं है तुम्हारे व्यू में, it's just nature and you and it's super calming. मतलब अगर तुम्हें वहाँ बैठने की जगह मिल जाए, बस God's favorite child. Am I better than everyone? बस वहाँ पे मिल जाए and it's like I love that experience. I जितना know. भी बोलो, it's not overrated. I think I would agree with her because मतलब the view you see, मतलब तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता तुम्हारे आजू बाजू कौन है, like a lot of people, but then all you can see and all you can feel is the sea. And मतलब खो जाते हो तुम and the skies and everything. Just vibe, total vibe. You remember that experience last time जब हम लोग गए थे? There was this person sitting next to us and she was recording back to back one. हाँ, वो एक गाना लूप पे बजा के वो रील बजाई जा रही है. What was that song? I don't know, समुंदर में किनारा किनारा तू. हाँ, और मुझे एक और बार इसने बजाया, मैं उसका फोन पकड़ा समुद्र में फेंक दूंगी. Another thing that you can only find in Mumbai, शुरू में आके मुझे बहुत होता था कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, is local. Oh God. If you are from Delhi and you travel metro से रोज, bro, you are privileged. मतलब Agree. रियल हसल तो लोकल में है. उसको समझने में ही तुम्हें अलग प्रकार का वो चाहिए कि कोर्स बनाना चाहिए भाई उसको समझने का and all the rules and everything. Okay, so there's a difference of fast train and slow train. I think some comedian also made a Akash. हाँ, आकाश गुप्ता, Yeah. which was so true. कोई पूछेगा कि फास्ट ट्रेन में जाना है या स्लो ट्रेन में जाना है, ऑब्वियसली से ना कि फास्ट में जाना है, जल्दी जल्दी पहुंचेंगे. बट फास्ट ट्रेन में वो सारे स्टेशंस पे नहीं रुकती है, वो स्किप कर करके, और यू वो टेलिंग मी ना काफी मेन स्टेशंस को स्किप कर करके वो चलती है. और दिल्ली से तुम आए अभी फास्ट में आना, तो अरे भाई फास्ट में ही जाएंगे, स्लो में बन जाएगा, फास्ट जाएंगे, फास्ट पहुंचेंगे. नो
No, it doesn't work like स्लो ही हर स्टेशन पे रुकती है, फास्ट 2-3 स्टेशन स्किप करके चलती है। वही। और सम वन ऑफ आवर फ्रेंड वाज टेलिंग द स्टोरी, अगर मतलब 10 लोग किसी स्टेशन पे चढ़ रहे हैं और सिर्फ 2 लोग उतरने वाले हैं, तो वो उन 2 लोगों को उतरने नहीं देंगे। They would be like, वापस ले लो, वापस ले लो, वापस ले लो। एकदम आएगा और चला जाएगा। कि वो लोग आपस में डिस्कस भी कर रहे थे, वापस ले लो, वापस ले लो, क्योंकि वो 2 लोग बहुत डिसरप्ट करेंगे 10 लोगों को। Oh तो you God. have to, sometimes they have to make choices कि 2 लोगों का लेट होना is fine, 10 लोग नहीं होने जल्दी चाहिए। होना है। So like group में they made a decision, कहते इसको वापस, जो 2 उतर रहे हैं उनको वापस ले लो, ट्रेन में वापस ले लो, वो बेचारे नेक्स्ट स्टेशन में जा रहे हैं जहाँ उनको उतरना था। मतलब हंस क्रेजी हंस। और मेट्रो में एक सेफ्टी है ना कि दरवाजे बंद होंगे, मतलब जो मर्जी होगा दरवाजा यहाँ बंद होगा बट बंद तो होगा। यहाँ पे लटक खुला एकदम सब चल रहा है। पीपल एंजॉय दैट, लटकना भी। अगर अंदर भी ट्रेन में जगह होगी ना, उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लिया है कि कुछ खंबा नहीं आएगा। इनफैक्ट पता है, मैंने तो ये भी देखा कि सीट होगी ना फिर भी लोग लटक रहे हैं। मतलब वही मैं बोल रही हूँ, दे एंजॉय इट कि उनको ऐसे, उनको मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर भरता है कि कोई खंबा नहीं होगा, मैं ठोक सकता हूँ, मैं फुल वादियों में एंजॉय एकदम हवाइयाँ करते हुए। ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ अनसेड रूल्स ऑल्सो जो मैंने नोटिस किया लोकल में। लाइक सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिटिंग ऐसे में और अगर कुछ सीट नहीं है तो यू गो इनसाइड दैट थिंगी, क्या बोलते हैं उसको, कोच सीट जो भी रहता है, एंड यू स्टैंड देयर एंड देन यू आल्सो आस्क पीपल कि आपको कहाँ उतरना है, आपको कहाँ उतरना है, आपको कहाँ उतरना है, एंड देन दे टेल यू एंड देन यू आर लाइक यू बुक योर सीट। तुम रिजर्व कर लेते हो वहाँ पे। सीट नहीं, यू बुक अ पर्सन। तुम बंदे को रिजर्व करते हो कि जब तू उठेगा तो मैं ही इधर बैठेगा। सबसे पूछेंगे कहाँ उतरना है, कहाँ उतरना है, कहाँ उतरना है। दैट इज क्रेजी। और वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। दे आर वेरी लॉयल टुवर्ड्स इट। अगर कोई और उन्हें भी बोल देगा ना कि मैं यहाँ बैठूंगी, तो वो बोलेगा नहीं, मैं उस बंदे से कमिटेड हूँ। उस बंदे ने पहले बोला है और जब मैं उठेगा तो वो ही बैठेगा। अगर कोई अपने रिलेशनशिप में चीट भी कर रहा होगा ना, वो लोकल में मतलब सबका लॉयल मीटर ऑन रहता है, जिसको कमिटेड करा है। जिंदगी भर की लॉयलिटी इधर ही दिखानी है। You remember that? So one time we were coming back, I think from Alibag or somewhere. तो हम लोग वहां से आ रहे थे, बहुत भीड़ थी। एक पॉइंट पे हमने लोकल ली थी। हाँ, या तो वहाँ पे काफी भीड़ था, तो वी वर स्टैंडिंग देयर। ठीक है, तो हम लोग पूछ रहे थे कि किसको कहाँ उतरना है, आप कहाँ उतरोगे एंड ऑल ऑफ दैट। काफी लोग खड़े हुए थे, तो मैंने एक आंटी को पूछा एंड देन आई गॉट अ सीट एंड देन मैंने सो आई वाज सर्चिंग सीट फॉर हर। तो मैंने एक और आंटी को पूछा कि आपको कहाँ उतरना है। शी वाज लाइक यहाँ उतरना है। हम लाइक ठीक है, व्हेन यू आर जब आप उतरने वाले हो तो फिर आप मेरी दोस्त को सीट दे देना। एंड शी वाज फेसिंग दैट साइड आई थिंक। भाई, she was so loyal. Even I was so busy on scrolling reels on my phone. She actually called me. She was like, "आपकी वो दोस्त कहाँ है?" मैंने कहा, "Oh, right." Come back. Like she was so loyal. और उसने क्या एकदम उठ के मेरे को ना मेट्रो के मोशन से आई एम डन, मतलब उसमें मैं हिलती नहीं हूँ। लोकल के मोशन से आई एम नॉट अडेप्टिव, तो मैं ऐसे हिलती हिलती जा रही थी, उसको दिख रहा था मैं बैठ नहीं पा रही थी। भाई इसने मेरा हाथ पकड़ के उसने बिठाया भी है, एंड लिटिल चाइल्ड, या एंड सो मेनी पीपल वर स्टैंडिंग। मतलब किसी को भी इतना क्या ही फर्क पड़ता है, लाइक उठ के जाओ ना। बाकी सब भी आर वेरी लॉयल टुवर्ड्स दैट। अच्छा, किसी और को बोला, किसी और को दिया, इन्होंने किसी और के कमिटेड है ये। ऐसे झगड़ा नहीं करता कि ये क्या बात हुई, आप तो उतर ही रहे हो, वो तो है भी नहीं। कहीं से भी पूरी लोकल ट्रेन में से आपको ढूंढ के लाएंगे, यही मेरा इंसान है जिसने मुझे बुक किया था। अच्छा, दिल्ली में ऐसे नहीं होता। दिल्ली में यू कांट आस्क समवन आप कहाँ उतरोगे, वो बहुत ऐसा जगह क्यों पूछ रहे हैं मुझसे। ये बात है। सो दिल्ली में इट्स बॉडी लैंग्वेज की। सो व्हेन यू आर स्टैंडिंग, तुम देखते हो कि अच्छा ये एयरपॉड्स बंद कर रही है, ये बॉटल अंदर रख रही है, क्या ये उतरने वाली है। और जैसे ही तुम्हें किसी के बॉडी में ऐसा दिखता है, एवरीबॉडी इज लाइक तो तुम्हें बॉडी लैंग्वेज में एक एक्टिवनेस रखनी पड़ती है। यू हैव टू रीड कि भाई मैं किसी गलत बंदे पे गैम्बल ना कर लूं, मुझे सही बंदे पे गैम्बल करना है कि वो पहले उतर सकता है। बिकॉज पीपल डोंट आस्क, कोई पूछता नहीं है किसी से। तुम बस बॉडी लैंग्वेज को रीड करते रहो, कौन पहले उतर सकता है। और फिर अगर तुम जहाँ खड़े थे उससे 2 सीट छोड़ के कोई उतरा और कोई और बैठ के ऐसे गलत गैम्बल पड़ गया। Now we know मेट्रो में इतना झगड़ा एंड ऑल क्यों होता है, पता नहीं, मतलब दिस इज द थिंग। तो उनमें दिल्ली का अलग रूल चलता है, कोई किसी से पूछ नहीं सकता। यू जस्ट हैव टू बी
इनफ एक्टिव तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में, तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज एक्टिव करनी है, दूसरे को रीड करना है कि जैसी वर्ड है आई जस्ट हैव टू स्लिप इन एंड सिट राइट. सो या सो वन मोर थिंग, अगर कोई संडे को, हाँ तो अगर आई जस्ट गिव अ डिस्क्लेमर, अगर कोई मुंबई घूमने आ रहा है और वीकेंड्स पे मरीन्स का प्लान कर रहा है तो प्लीज डू नॉट, स्पेशली मॉर्निंग टाइम्स में, जस्ट डू नॉट. सारे रील मेकर्स दुनिया भर के मुंबई के सब संडे को मरीन्स पे मिलते हैं, एंड एवरी अदर पर्सन वुड बी लाइक लिटरली एकदम कैमरा हर जगह दिखेगा तुम्हें, यू वुड नेवर नो यू बीइंग रिकॉर्डेड और तुम फेमस वायरल हो चुके हो इंस्टा में, तुम्हें पता ही नहीं. एवरीवन who is the prime minister of India, what is your favorite color, and उस टाइम तो दिमाग ही नहीं चलता, मुझे कहा नहीं मुझे नहीं पता भैया सोच के बताना पड़ेगा. who is the prime minister, आलिया भट्ट. कंसेंट नाम का तो कोई चीज ही नहीं होता वहाँ पे कि भाई को तुमसे साइन कराए कहीं कि कैन वी पोस्ट दिस. एकदम खुले आम रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई तो बैक फ्लिप कर रहा है, कोई समरसॉल्ट कर रहा है, कोई एकदम तुम्हें रोज दे रहा है, कोई प्रपोज कर रहा है, कोई रील्स बना रहा है. Oh God, everywhere camera you'll find, everywhere. हो सकता है some people enjoy that kind of stuff Maybe. also to witness that. If you enjoy, then you can maybe enjoy. But if you don't, नहीं गई weekends then सुबह सुबह. I'm not sure if you'll enjoy that. But हाँ भाई, very weird. So अपने कैमरा के सामने बैठ पा रहे हैं हर हफ्ते वही. ये काफी है. Every podcast I drop water. Yeah. So So the other time भाई एक बंदा आया and he was like एकदम रोज लेके, लाल दिल, लाल रोज एकदम. ठीक, लाल रोज एकदम लेके. और मैंने कहा नो, द हेल नो. एंड देन एक और बंदा, और भाई कैमरा दिख रहा है मुझे सामने, और ऐसे होता है ना जब कैमरा सामने होता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई यू आर बीइंग रिकॉर्डेड सो यू कैन नॉट जस्ट एक्ट राइट. सो लाइक नो आई कैन नॉट, व्हाट द हेल, जस्ट नो. एंड देन एक और बंदा है येलो रोज लेके, उसको लगा शायद मुझे रेड रोज नहीं पता, येलो रोज ट्राई. I think rose is the problem. Let's try again. Hey, that was crazy. So just saying, don't please. Yeah. I think मुंबई में कैफे कल्चर बहुत ज्यादा हो गया आजकल. But the thing is, I keep on saying Delhi because मैंने दिल्ली में बहुत घूमा and that's only my reference point towards things. तो दिल्ली में cafes have space to create ambience. इधर you wouldn't even realize कि यहाँ पे एक बहुत famous cafe या restaurant पड़ता है. For example, Bastion is like super hyped. Yeah. I mean, क्या इतना क्या रिजर्वेशन नहीं देते वो लोग. कम ऑन, शिल्पा शेट्टी जस्ट लाइक let us in. जाने दो. इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट जस्ट स्ट्रीट पे वो है बांद्रा वाले, यू वुडंट इवन रियलाइज कि यहाँ पे कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट आने वाला है. इट्स लाइक अ रैंडम रोड, और रैंडम रोड के कॉर्नर में एक एक्सेसरी शॉप है एंड देन देयर इज अ वुडन गेट जिस पे बस बास्टियन लिखा है. ये रहा यहाँ पे छुपा हुआ था. and then ऊपर they'll create spaces, but there's one thing, कितने छोटे cafes हो या कितने छोटे restaurants हो, they would create a vibe, and plus they would always make space to cut a washroom. You wouldn't even believe छोटे छोटे ice cream parlors में भी उन्होंने washroom cut कर रखा है. So other day we were having dinner at a place and I asked for the where's the washroom. The guy pointed out. I went. दरवाजा बंद होता है तुम्हारे यहाँ पे. You sit, do whatever, squat, do whatever you want. You shift, you wash your hand, and there was this mini wash basin जो मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में. But वो लोग कर देंगे create. Like kudos to Mumbai interior designers. Seriously, for real. वो कर देंगे washroom cut. Like they would create best of the places in the छोटा सा space. This super hyped Supco. Oh God. Bro, you need to visit the Bandra one. I cannot. I think I'm done with the Colaba one. बदल जाएगा कि वो एक ऐसे गली सी है and then you take a right and then the scene ही change जाता है. वो वहाँ पे थोड़ा सा village वाला street है. मुझे इतना भी नहीं पता है street है. And then you take a right and there are people enjoying coffee बाहर बैठ के. Then you enter और spaces बनी हुई है. It's like अंदर का वाइब इज टोटली. आई रिमेम्बर मैं सबको गई थी कोलाबा वाला, एंड
तो हम लोग जी मैप्स पे देख रहे थे एंड वी कुड सी दिस लेन जिसमें वो है, बट देन सो वी आर गोइंग इनसाइड दैट लेन, हम लोग अंदर तक जा रहे हैं, हम डेड एंड पे पहुंच गए, वी कुडंट सी एनीथिंग, लाइक वेयर इज इट, एंड जब जी मैप से हमने फोटोज देखी तो इट वाज ह्यूज, लाइक अंदर से इट वाज लाइक पूरा फैक्ट्री में एंड कॉफी मशीन्स चल रहा है एंड एवरीथिंग, एंड लाइक भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ होना, आई मीन दिस इज सच अ बिग प्लेस, यहाँ पे कैसे हो सकता है, एंड देन हम डेड एंड तक पहुंच गए एंड देन वी स्टार्टेड आस्किंग पीपल लाइक वेयर इज दिस, एंड देन दे पॉइंटेड आउट दिस स्मॉल ग्रीन गेट जहाँ से तुम अंदर जाते हो, लिटरली स्मॉल, हमारा दरवाजा इससे बड़ा है, आई एम नॉट इवन किडिंग, स्मॉल गेट एंड देन उसके अंदर जाते हो एंड देन यू सी दिस बिग एस थिंग, आई लाइक ओ वाओ, और किधर भी ऐसे बड़ा बड़ा लिखा भी नहीं है कि एकदम किधर जैसे लिखा हो सुबको दिया So seriously basically, Mumbai people know how to create a vibe with whatever Yeah, space they they have. have absolutely. Kudos to that. Hmm. Thank you, Sakshi. No, not for you. खाना भाई इधर का पाव, मतलब पाव के बीच में कुछ भी डाल दो, कुछ भी, लेजिट मिसल पाव, दाबेली, मसाला पाव, व्हाटएवर, वड़ा पाव, मतलब कुछ भी, पाव कांस्टेंट है, एंड जो मुझे लेजिट हर्ट हुआ, मतलब लेजिट हर्ट वाला, इन्होंने समोसा पाव बना दिया यार, लाइक माय सोल क्रश्ड व्हेन आई सॉ samosa being crushed between two paws, like legit भाई, that lady was like एकदम ऐसे सुंदर सा, भाई उसका सोल ही है ना कि it is cute triangle shape and then you have it, god, and then she was like एकदम ये बीच में रखा, चटनी वटनी डाला and then pachak. I'm like, no, you can't do that. But then I started liking it. It's not Even that bad. vada pav. We Disown मत started करना मुझे. vibing with vada pav so much. हाँ. Mostly कि काफी वो बजट इफेक्टिव था. True. मंथ वो हमारा एंड्स में हम लोग डिनर करते थे वड़ा पाव का जाके. अभी भी करते ही है. हाँ, बट वो पीजी में, हम पहले पीजी रहते थे तो वहाँ पे संडेज को डिनर नहीं मिलता था, तो हम अपना सेव करने के लिए कि एक दिन जाके कैफे में खा सके, और जो मंथ एंड रीच करते थे वी वुड वॉक इन गो एंड हैव अ वड़ा पाव एज डिनर, और उसको मिडनाइट स्नैक के लिए पैक भी करा के लाते थे. वड़ा पाव तो आई लाइक, नो डाउट, आई मीन इट इज टेस्टी. हाँ, जिसमें बट लाइक इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, बट कुछ तो है वो टेस्ट के कॉम्बिनेशन में. बट जितना अच्छा इन्होंने वड़ा पाव बनाया ना, उतना ही पानी पूरी फक कर दिया. भाई तुम लोग खा के देखो ना गोलगप्पे, मतलब ऐसा एकदम मसाले का बर्स्ट होता है उसको खाते ही, उसको उबला हुआ जो तुम वो डालते हो उसको मटरा, रगड़ा बोलते हैं, बट वो मटरा होता है, मतलब आई नो इट एज मटरा, जो कुलचे के साथ मिलता है. गोलगप्पे के अंदर उबला हुआ मटरा और फिर पानी, मतलब गरम गरम. हाँ, अजीब से 25 टेस्ट आ जाते हैं उसके टूटते ही, मतलब पानी पूरी नहीं हो पाया. आई एम सॉरी. आई नो. और इतना मुश्किल होता है वो एकदम, जो हमारा आलू का मसाला होता है उसको ढूंढना, इसलिए हम सिर्फ पानी पूरी खाने जाते हैं. कहाँ पे? भगत तारा चांद. शाउट आउट टू भगत तारा चांद. सो गुड. बट उनके पास भी दोनों है, मतलब इट्स नॉट लाइक रगड़ा थोड़ी है. नहीं है उनके पास रगड़ा. नहीं है रगड़ा. ट्रू नॉर्थ इंडिया वो बहुत सही है. और मैं इतना पानी पूरी घर पे भी नहीं खाती थी, बट वो अजीब सा मिसिंग होने लग गया यहाँ पे आके कि नहीं रगड़ा मिलता है, मुझे तो पानी पूरी खाना है. यहाँ पे खाती भी नहीं थी मैं इतना गोलगप्पा, बट अब ऐसा होता है महीने में 2 बार तो खाना ही है भगत ताराचंद में, जस्ट बिकॉज और और कहीं नहीं मिलता, तो मुझे 2 बार महीने में भगत ताराचंद जाके गोलगप्पा खाना होता है. इट्स अ चेन. सो जिसने सिर्फ रगड़ा के साथ खाया अपनी लाइफ में, प्लीज ट्राई. वेक अप. You're missing out on so much. You don't even know. Also, भाई तब मुझे आंसू आ जाएंगे बोलते बोलते. ये लोग पोहे को नारियल की चटनी और सांभर के साथ. अच्छा हाँ, वो तो पता है ना. I am also like from north, central in India basically. Yeah, I have studied. Yeah, very big thing. So I've studied in Indore. So like poha is soul उधर का. So तो घर पे हिट हुआ. Seriously, मतलब बहुत ज्यादा. Like imagine पोहा नारियल की चटनी और सांभर के साथ. मतलब what the fuck is this combination of South India and
नॉर्थ इंडिया को मिला के यहीं पे सारा एकदम मिलन हो रहा है एकदम, मतलब that was so, I don't know, hurtful. I could not. घर पे And then, can I say the name? क्या? There's this my friend of mine who is from Indore. So हम लोगों ने जब देखा ये होते हुए, I think हमारी कॉलेज कैंटीन में भी मिलता है, तो I was so shocked. I'm like, bro, कुछ करना पड़ेगा, मतलब ऐसे कैसे चलेगा, मतलब सांभर हमारे पोहे के साथ अन्याय हुआ है। मैंने कहा भाई केस वेस लड़ते हैं, what the hell, and he is from इंदौर only, like ठीक है, तो उसको तो मुझसे भी ज्यादा ग्रजेस होने चाहिए ना. हाँ. Even he was like, hey, yeah bro, cannot, I mean no, and then he started liking it. अब ना वो रोज खाते हैं रेगुलर, I was like nah, it's cool. साक्षी से छुप के And every time I give him looks, I'm like नो भाई इसको तो डिसोन करो, इसको निकालो इंदौर से, इसको रखो इधर ही. सीरियसली. बट या आई थिंक मुंबई डज हेल्दी फूड नाइसली. मतलब सोबो में काफी सारे कैफेज हैं जिसमें वो बहुत इंटरेस्टिंगली हेल्दी फूड बनाते हैं. सो लाइक मुंबई हैज क्रैक्ड दैट डे आई वेंट टू अ कैफे जिसमें उन्होंने दाल का वॉफल बना दिया भाई. दाल के वॉफल के ऊपर पेस्टो था और फिर मशरूम था. क्रेजी इनोवेशन चल रहा है, क्रेजी कर दिया उन्होंने, मतलब बेस्ट. क्रेजी कर दिया. So good innovation on that. That's good. So I think we can wrap here. Yep. So cheers. Cheers guys. to consistency of Yeah. you guys. If you are watching every episode Till the cheers end. to you. Yes. Yes. Let's go. So like, share, Subscribe, and also press on that bell icon because we are also planning to drop some good videos, surprise videos in between the weeks. So yeah, do press that bell icon so that you can get notifications about our videos, and do follow us on बस हो गया, Instagram also. cheers अब. Please subscribe. That was so bad, but whatever. We'll see you in the next episode. Bye.